रखिए, नहीं अन्यथा अभी होगा तो तो ऑन करके बात करिएगा। अभी क्लोज योर माइक। Okay. Now I'm going to mute all of you. To mute you all. Now, children, first at all, I'm going to tell you about the lesson 12, the Turkish invasion in North India. Yesterday also we have studied it, and today I'm going to first at all repeat the chapter, what is in the lesson 12, and the political condition of India before the invasion of the Muslim invasion in India. तो फर्स्ट एट ऑल हम लोग उसमें फर्स्ट पॉइंट हम लोग का क्या है, इन मेडिवल पीरियड द आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन the whole of India was disintegrated into many small kingdoms, and the continuous the struggle for supremacy and constant fighting created disunity and enmity among the Rajput rulers. This attracted the Muslim invasions in India. The Rajputs failed to join hands with each other to defend India from Arab invasion. It is clear for all of you. The meaning the struggle for supremacy and constant fighting created disunity and enmity among the Rajputs. This attracted the Muslim invasion in India. The Rajputs failed to join hands with each other to defend India from Arab invasion. मतलब अरब लोग जो अटैक किए तो उस समय राजपूत लोग आपस में लड़ रहे थे. They were fighting together, and it has created a situation that the Rajputs failed to join hand with each other to defend their country from the Arab. And social system भी बहुत खराब था उस समय. सोशल सिस्टम जो था वो बहुत खराब था. सोसाइटी वाज रिजिड कास्ट सिस्टम था उस समय. कास्ट रिजिड मतलब कास्ट सिस्टम ऐसा कि कोई अपनी जाति को छोड़ नहीं सकता था. लोगों को जाति छोड़ने का बहुत डर लगा रहता था, और छोटे जात के लोगों को मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इसको सिंपली समझना है हम लोगों को कि बस जो दो कास्ट थे ब्राह्मण एंड क्षत्रिय, दे डोमिनेटेड द सोसाइटी एंड मेक द ऑल द रूल अकॉर्डिंग टू देयर ओन चॉइस, एंड इट हैज and this has ultimately what has happened, this has disintegrated the Indian society also, and the feudal system led to the decline of many empires. And the feudal system, feudal lords gave only a small part of the land revenue to the king. This weakened the power of the king. Moreover, many feudal lords like Chauhans and Parmars became powerful and established independent empire. All this has led to the disintegration of the Indian states and the society on the whole. And ultimately, the Rajput kings were unable to defend India from Arab invasion. This is the Math and the Matha and temples were the great center of wealth, because the people were getting, the king themselves donate a lot of money to the temples. So all this has attracted the foreign invaders, especially Muslims, to attack in India and plunder here. तो now अब हम लोग फिर से इस चीज को एक बार हम लोग we have repeated what were the main reason behind the Muslim invasion in India. Now children again, देखिए ये जो भी हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री क्या है. हिस्ट्री वो है हम लोग को पढ़ाता है स्टडी ऑफ द पास्ट. लेकिन सिर्फ हम लोग, आप लोग को भी लगता होगा कि अरे हिस्ट्री में तो क्या मतलब है, लेकिन हम लोगों को है. अब मतलब तो आप सोचिएगा कि क्या है. तब मतलब सबसे बड़ा मतलब ये होता है कि मान लीजिए सपोज करिए कि हमारे कंट्री में जो कुछ भी आज है तो उसका रिलेशन जो है हमारे आज करते हैं. आज अगर मान लीजिए सपोज करिए, तब आपका क्या होगा कि लोग जो है सोचेंगे कि अरे ये लड़का या ये लड़की है, दे डू नॉट लिसन द
listen, they do not obey their elders, they are their own routine। इस तरह से क्या होगा कि जब आप बड़े होंगे तो आपका सब कुछ गड़बड़ होता चला जाएगा। दैट्स वाई इसीलिए कहा जाता है कि शुरू से ही अपने आप को ठीक ठाक रखना चाहिए। तो हमारे कंट्री में शुरू से हम लोग ठीक ठाक नहीं रहे और सबसे बड़ा कारण था हम लोग आपस में लड़ते रहे और कास्ट सिस्टम को बहुत फॉलो किए। इवन इन टुडे इन द रूरल एरिया स्पेशली गांव के तरफ में लोग अभी भी जात पात को बहुत ज्यादा मानते हैं, लेकिन शहर में नहीं मानते, हम लोग नहीं मानते लेकिन उधर मानते हैं। तो उसके बाद जो है अब फिर से लेसन को एक बार ध्यान दे दीजिए। मेनी स्मॉल किंगडम्स emerged powerful in different parts of, but their rule was limited to a specific regions, though they constantly aspired to extend their boundaries। अब एक थोड़ा ही दिन तक क्योंकि वो लोग चाहते थे कि मेरे बाउंड्री को बढ़ जाए, इसलिए आपस में लड़ते रहते। The frequent wars among the Rajputs resulted in political unity in North India. This attracted invasions by the Turk. Abbasid Khalifas of Baghdad recruited the Turks as guards and professional soldiers. By the end of the 9th century, the power of Khalifa weakened. मतलब 9th सेंचुरी में क्या हुआ, खलीफा जो इन लोगों को गार्ड में बनाते रखे हुए थे या सोल्जर बनाए हुए थे, उनका पावर कम हो गया। द पावर वीकेंड। Turks slowly took over the power and became governor of the provinces। उसने क्या किया, धीरे धीरे पावर अपने हाथ में ले लिया और प्रोविंस के गवर्नर खुद ही बन गए। They some of them asserted their independence from the खलीफा। उसमें से कुछ लोगों ने क्या किया, अपने इंडिपेंडेंस खलीफा से अपने को आजाद भी कर लिया, क्योंकि खलीफा धीरे धीरे कमजोर हो रहे थे, ये लोग मजबूत हो रहे थे। That's why they asserted their independence from the खलीफा। अब वन गवर्नर हु कॉन्कर्ड गजनी इन अफगानिस्तान, अब उसी में एक गवर्नर जिसने अफगानिस्तान में गजनी को जीता था, स्टार्टेड ए न्यू लाइनेज ऑफ रूल, मतलब एक नया शुरू किया लाइनेज, मतलब शासक की जाति, और वो क्या कहलवाए, गजनविस। वो क्या कहलवाए, राजाओं की जाति, मतलब एक जाति जो कि गजनविस कहलाए। Muhammad Ghazni was born in 971 CE. ये ascended the throne in 998 CE। वो जो है गजनी जो है 971 में जन्म लिया और 998 में वो राजा बन गया। मतलब कितना साल का था उस समय वो, 71 to 80 और प्लस 90 और प्लस 98, मतलब 28 ईयर का वो, ऑलमोस्ट 28 और 29 ईयर का था जब वो राजा बना। He decided to invade northwest India, where the Gurjar Pratihar Empire had become weak due to frequent battle with Palwaj and Rajputas। नॉर्थ वेस्ट की तरफ से घुसना शुरू किया इंडिया, मतलब नॉर्थ वेस्ट आपका हो गया हम लोग का राजस्थान और उधर कश्मीर की तरफ वाला एरिया पूरा ले लीजिए, अफगानिस्तान और कश्मीर राजस्थान का एरिया नॉर्थ वेस्ट वो हम लोग का माना जाता है। अब उसमें उस एरिया को भी क्यों चुना, क्योंकि गुर्जर प्रतिहार को, तो गुर्जर प्रतिहार इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो लोग गुजरात की तरफ ही थे और दे वेर फाइटिंग टुगेदर विथ पल्लवाज एंड राजपूताज। तो इससे क्या हुआ, वो लोग कमजोर होते चले गए और उनका पकड़ जो है अपने बाउंड्रीज पे ये हो गया, क्या ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, बिकॉज दे वेर फाइटिंग टुगेदर। इंटरनल वार हैज वीकेंड देयर पावर। मोहम्मद फिर फ्यूडल सिस्टम था, कास्ट सिस्टम था, इसकी वजह से लोग आपस में बहुत सारे इसमें बटे हुए थे। मोहम्मद गोरी इन्वेडेड इंडिया इन 17 टाइम इन 27 years। उसने गजनी, मोहम्मद गजनी इन्वेडेड इंडिया इन 17 टाइम इन 27 years। He wanted to make Ghazni, a small hilly and poor region, into a powerful empire। अब कहता है कि वो जो 27 साल में 17 बार इंडिया पर क्यों अटैक किया, क्योंकि वो गजनी को क्या तो बनाना चाहता था, बहुत पावरफुल एम्पायर बनाना चाहता था। तब उसके लिए उसको पैसे की जरूरत थी, तो वो पैसा उसको कहाँ से मिलने का पॉसिबिलिटी था, इंडिया से। दैट्स व्हाई इट हैज अटैक्ड इंडिया in 17 times in 27 years। He was attracted by the great wealth of India, so he started plundering towns and temples in North India। अब क्या किया कि उसको मतलब इंडिया की तरफ को क्यों अट्रैक्ट हुआ, क्योंकि उसको पता चल गया कि इंडिया के पास बहुत वेल्थ है, स्पेशली द वेल्थ वाज सेंट्रलाइज इन द मठास, मंदिर टेम्पल्स में, टेम्पल एंड मठास, बिकॉज किंग क्या कहिएगा कि डोनेट wealth generously to the temples and mathas। That's why the king donate wealth generously to the temple and
Mathas. That's why they were the great center of wealth. Now, next. So he started plundering towns and temples in North India like Nagarkot, Thaneshwar, Mathura, and Kannauj. His most destructive attack was directed against Somnath temple in 1025 CE. अब कहता है कि अब उसका सबसे तब उसने क्या किया, मंदिर पर अटैक करना शुरू किया। अब उसने कहाँ कहाँ अटैक किया, नागरकोट, थानेश्वर, मथुरा और कन्नौज के मंदिरों को, और नगर को भी लूटा और मंदिर को भी लूटा। और उसका सबसे डिस्ट्रक्टिव अटैक किसको कहता है, सोमनाथ मंदिर पे, जो कि 1025 सी में किया था। दिस वेयर इज द सोमनाथ टेम्पल, इट इज इन गुजरात। दिस टेम्पल इज सिचुएटेड ऑन द सी कोस्ट ऑफ गुजरात। राजपूत वॉरियर्स पुट अप ए स्टिफ रेसिस्टेंस। अब राजपूत लोग जो थे वो लोग बहुत पुट अप ए स्टिफ रेसिस्टेंस, मतलब बहुत कड़ी लड़ाई लड़े मंदिर को बचाने के लिए। बट दे वॉरियर्स पुट अप द स्टिफ बट लॉस्ट। क्यों लॉस्ट कर गए, बिकॉज दे वर नॉट यूनाइटेड, वो लोग आपस में यूनाइटेड नहीं थे, दैट्स व्हाई दे लॉस्ट एंड but lost at the battle. Muhammad broke the idol of Mahmud broke the idol of Somnath. उसने जो सोमनाथ का जो मंदिर था उसको तोड़ दिया पूरा, and looted property worth 20 million रुपए, और 20 million रुपए का प्रॉपर्टी लूट कर ले गया। Some historians are of the opinion that the main objective of Mahmud Ghazni was to propagate Islam and gain popularity among Muslims. अब हिस्टोरियंस आपस में बात सोचते हैं, कोई भी घटना होती है तो ये सोचा जाता है कि घटना क्यों हुई, why this has happened. The historians are also thinking why he has destroyed the Somnath temple. तो उसका कहता है कि because he want to propagate Islam, and in Islam the idol worship is prohibited, and he wants to show that we are very powerful and Indians are fighting, and I can establish my own religion here. That's why he has done so. And Mahmud's invasion exposed the weakness of Indian ruler and paved the way for the establishment of Muslim rule in India. अब जो महमूद बार बार इंडिया पर 17 टाइम अटैक किया, अब इससे क्या हुआ कि इंडियन रूलर्स के अंदर आपस में लड़ते रहते हैं और उनको मतलब दे आर अनेबल टू सेफ देयर बाउंड्रीज फ्रॉम द फॉरेन अटैक। इट हैज मतलब इट हैज क्या कहेगा कि expose the weaknesses, the Indian rulers, they are unable to save their country from the foreign attack, foreign rulers. उससे क्या हुआ कि मुस्लिम लोगों का हिम्मत बढ़ता चला गया and they established their rule in India. Trade interest has also attracted many Muslims to settle in India. अब क्या होता है कि ट्रेड इंटरेस्ट का मतलब होता है, इंडिया को उस समय क्या गोल्डन बर्ड कहा जाता था, सोने की चिड़िया। So the country was very prosperous at that time, and the countrymen have a lot of wealth also. We were wealthy. हमारे पास हम लोग के पास बहुत सारा पैसा था। Though culturally we were deteriorating, but we were wealthy. And Arabs were thinking that Indians have a lot of money, and they in the world trade, in the field of world trade, our name and fame are also. Indians were also very famous. That's why some Arabs have also trade interest, मतलब व्यापार के लालच में भी यहाँ आए और यहाँ रह गए. This period also saw the development of a close cultural interaction between India and Islamic Central Asia. अब इसी समय कहता है इसी पीरियड में इंडिया और इस्लामिक एशिया में आपस में क्लोज कल्चरल रिलेशनशिप भी डेवलप किया between India and Islamic Central Asia. But Mahmud's destruction of valuable and artistic temples and idols was a great loss to Indian heritage. लेकिन महमूद जो आ करके यहाँ का जो मंदिर और उसको तोड़ करके मूर्ति को तोड़ कर गया, उससे इंडियन हम लोग को बहुत अभी लॉस हुआ। लॉस का मतलब आर्ट एंड आर्किटेक्चर का। जैसे मान लीजिए आर्ट एंड आर्किटेक्चर क्या होता है, जो राजा उस समय कुछ भी बनवाते हैं तो इसलिए बनवाते हैं कि जो भी उसमें कितना डेवलपमेंट है, लोग क्या किस तरह का घर बनाते थे, जो आप लोग पढ़ते होंगे क्या, पढ़ाएं क्या आप लोगों को इन क्लास 6 में। जैसे मान लीजिए कि सिंधु घाटी सिविलाइजेशन आप लोग को पढ़ाया गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो वो क्या था, इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या था, लोग कैसे रहते थे,
किस तरह अपने घर को बनाते थे, उसमें का ड्रेनेज सिस्टम बोला जाता है इतना अच्छा था कि आज भी हम लोग जब मकान बनाते हैं तो ड्रेनेज सिस्टम, क्योंकि आप कोई भी मकान घर में अगर पानी निकलने का कोई अगर ये नहीं रहता है, मान लीजिए कि देयर इज नो एनी फैसिलिटी ड्रेनेज सिस्टम, if there is not a good drainage system in a house, then it is the people who are living in the house will face a lot of difficulties in that condition. तो उस समय भी इंडस वैली के लोगों ने सोची कि ड्रेनेज सिस्टम को डेवलप करके रखा था। तो व्हाट दिस शोज द कल्चर वाज वेरी डेवलप। अब सपोज करिए, मान लीजिए कि अब उस समय कोई आकर के सब कुछ तोड़ दे तो फिर बचता ही कुछ नहीं है। जैसे इसी का कहा जाता है, खिलजी जब अटैक किया था बख्तियार यहाँ पर नालंदा यूनिवर्सिटी में, तो उसको पता था कि इंडिया में बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, थे वेल एजुकेटेड। उसने गुस्सा के मारे, क्योंकि इस्लाम में बहुत ज्यादा पढ़ाई को वैल्यू नहीं दिया जाता था उस समय, तो उसने उस गुस्सा के मारे ज्यादातर बुक्स को ही जला दिया। वहाँ का लाइब्रेरी बोला जाता है कि 10 साल तक जलता रहा। अब ये बढ़ा चढ़ा के है, चाहे जो भी है, सोचिए कि कितना बुक्स होगा। नालंदा यूनिवर्सिटी आप लोग नाम सुनेंगे, उसको उसने बख्तियार खिलजी ने उसको मतलब डिस्ट्रक्टेड एंड लूटेड बोथ ऑफ द टू द यूनिवर्सिटी। ऐसा बोला जाता है कि दुनिया भर के स्कॉलर आकर वहाँ पढ़ते थे। तो ये मुस्लिम जब अटैक हुआ इंडिया पर, तो दिस हैज डिस्ट्रक्टेड द होल सिस्टम। उसने पूरे सिस्टम को बर्बाद कर दिया, एंड स्पेशली जो टेम्पल्स को लूटा और जो मूर्ति तोड़ा, तो उससे क्या हुआ कि जितना भी मतलब वैल्यूएबल जो हम लोग का रिच रिसोर्सेज था, कल्चरल सिस्टम था, हेरिटेज, वो बर्बाद हो। डू यू नो महमूद गजनी इज रिमेम्बर्ड एज ए प्लंडरर ऑफ टाउन्स एंड टेम्पल्स इन इंडिया। अब कहता है कि जानते हो महमूद गजनी को इंडिया में प्लंडरर मतलब एक लुटेरा और जो इसको जो है मंदिर और मस्जिद तोड़ने वाले के रूप में इंडिया में याद कर देते हैं। बट हिज ओन कंट्री इज रिमेम्बर्ड एज ए ग्रेट बिल्डर ऑफ ब्यूटीफुल मॉस्क, पैलेसेज एंड लाइब्रेरी। लेकिन कहता है कि अपने कंट्री में उसको जो है याद किया जाता है कि वो बहुत सुंदर मॉस्क, मस्जिद बनाया, महल बनाया, पैलेस एंड लाइब्रेरीज भी बनाया। अब सोचिए कि अपने कंट्री वाले लोगों को उसने इन लोग पढ़ने के लिए बढ़ावा दिए, लेकिन इंडिया आके इंडिया में जो एजुकेशनल सेंटर्स थे, टेम्पल्स थे, सबको इन लोगों ने तोड़ा और यहाँ से लूट करके ले गए, किताब वगैरह जला दिए कि तो इनका नॉलेज, हम लोगों का नॉलेज खत्म हो जाए। तो गजनी Firdausi, a famous poet, wrote Shahnama in which he praised the steps that Mahmud Ghazni took to propagate Islam. अब फिरदौसी जो है एक मतलब बहुत पोएट थे फेमस, तो उन्होंने शाहनामा शाहनामा एक पोएम ये लिखा और जिसमें जो है ये उन्होंने इसके मतलब प्रेज किए, जो गजनी ने जो भी किया था महमूद गजनी ने उसका प्रेज किया। ही प्रेज द स्टेप्स दैट महमूद गजनी टुक टू प्रोपागेट इस्लाम एंड बिल्ट अप गजनी एज ए ग्रेट एम्पायर। इस्लाम को बढ़ावा देने के लिए जो भी उसने किया था उसका उन्होंने मतलब बड़ाई किया, और ये बोले कि गजनी जो ग्रेट एम्पायर बनाने के लिए उसने जितना भी मेहनत किया था वो सब का उन्होंने किया। he has done a good thing, he has done a good thing, ये उन्होंने बताया। he also interested Al-Biruni to write an account of the Indian subcontinent known as किताब हिंद। अब अल-बरूनी को भी उसने कहा कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर एक किताब लिखो जिसका नाम क्या था, किताब अल हिंद। अब जो है ये हो गया आपका महमूद गजनी का। अब हम लोग पढ़ेंगे महमूद गोरी के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द महमूद गोरी। महमूद गोरी। अब महमूद गोरी वाज द रूलर ऑफ ए स्मॉल किंगडम ऑफ गोर इन अफगानिस्तान। अब ये कौन था? एक बहुत छोटा किंगडम था गोर नाम का, अफगानिस्तान में, वहां का राजा था। ही कॉन्कर्ड गजनी, उसने गजनी को जीत लिया, मतलब महमूद गोरी गजनी को हराया। ही प्लेस्ड इट अंडर द चार्ज ऑफ हिज ब्रदर। और हराने जब गजनी को जीत लिया तो उसने अपने भाई के इसमें उसको दे दिया कि यू टुक इट, तो उसके चार्ज में दे दिया। एंड डिसाइडेड टू टर्न हिज अटेंशन टुवर्ड्स इंडिया, और अपना खुद क्या किया कि अब अपना अटेंशन इंडिया की तरफ बढ़ा दिया। टू एक्सपैंड हिज एम्पायर unlike Mahmud Ghazni, whose main aim to invading India was to loot the great wealth of India। अब देखिए ये आप लोग को एक क्वेश्चन आ सकता है
अब कहता है ये दोनों का मतलब कंपेयर कर दिया आपको यहाँ पे। यहाँ पे अब आपको क्या कंपेयर किया, आप पूरा ध्यान दीजिए। देखिए फिर से हम पढ़ रहे हैं। महमूद गोरी वाज द रूलर ऑफ ए स्मॉल किंगडम ऑफ गोर इन अफगानिस्तान। अब वो कौन था? गोर का एक राजा था, छोटा सा जगह। गोर मतलब अफगानिस्तान का एक छोटा सा जगह है। फिर कौन का? गजनी। वो गजनी को जीत लिया, मतलब महमूद गजनी का जो ये था उसको जीत लिया। ही प्लेस्ड इट अंडर द चार्ज ऑफ हिज ब्रदर, और उसको क्या किया? अपने भाई के अंडर में रख दिया। एंड डिसाइडेड टू टर्न हिज अटेंशन टुवर्ड इंडिया, और अपना अटेंशन किस तरफ किया? इंडिया की तरफ कर दिया कि चलो इंडिया चलो और वहां पर अपना राज बढ़ाओ। अब क्या था इसका? अब देखिए अब यहीं पर जो वर्ड आ रहा है, तो टू एक्सपेंड हिज एम्पायर, अपने एम्पायर को बढ़ाने के लिए इंडिया की तरफ क्यों आया? क्योंकि अब हम अपने एम्पायर को बढ़ाएंगे। अब अनलाइक महमूद गजनी, अब महमूद गजनी के बारे में हम लोग ऑलरेडी अभी इसमें गोरी के पढ़ने के पहले हम लोग महमूद गजनी को पढ़ चुके हैं। तो महमूद गजनी को पढ़ने पर हम लोग देखे कि वो 27 ईयर में 17 बार वो इंडिया पर अटैक किया, लेकिन वो यहाँ पर राज नहीं किया। वो यहाँ से लूट पाट करके लेकर के और कहाँ चला गया? वापस गजनी चला गया। लेकिन अब इसका क्या था? गोरी का क्या था? देखिए अब यहीं पर बता रहा है। अनलाइक मोहम्मद गजनी whose main aim of invading India was to loot the great wealth of India, वो यहाँ का ग्रेट वेल्थ लूटना चाहता था। और गोरी क्या चाहता था? यहाँ पर अपने राज्य को एस्टेब्लिश करना चाहता था। तो एक यहाँ से लूट करके वापस चला जाना चाहता था और एक यहाँ पे रहना चाहता था। ये आप कंपेयर में याद रखिएगा। तो महमूद गजनी जो था वो लूट करके वापस गया। महमूद गोरी क्या किया? इंडिया में आया और यहाँ पे रहना चाहता था। The credit of the founding of Muslim Empire in India goes to मोहम्मद गोरी। अब कहता है तब अब इसलिए जो क्रेडिट जो है, इसीलिए कुछ हिस्टोरियन ने कहा कि महमूद गजनी सिर्फ इस्लाम का प्रोपेगेट करना चाहता था और वो अपने गजनी को ही सिर्फ स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था। लेकिन इंडिया में क्या कहिएगा कि मुस्लिम एम्पायर को एस्टेब्लिशमेंट करने का ये क्रेडिट किसको जाता है? वो जाता है महमूद गोरी को। ही ऑक्यूपाइड, अब क्या क्या जीता है उस समय, मतलब पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी बहुत सटा हुआ इंडिया का ही पार्ट था पाकिस्तान। ही ऑक्यूपाइड पेशावर, ये सारा पाकिस्तान में है, अभी भी ये सारा नाम है, ये स्टेट का वहां पर नाम है। पेशावर, लाहौर एंड सिंध। he was defeated in first battle of तराई by पृथ्वीराज चौहान, और उसको तराई एक जगह है, तो वहां पर उस पृथ्वीराज चौहान ने उसको हराया मोहम्मद गोरी को। बट was victorious in the second battle of तराई and took over दिल्ली and अजमेर, और लेकिन जीत गया, सेकेंड बैटल ऑफ तराई में जीत गया और दिल्ली और अजमेर को जीत गया, क्योंकि उस पृथ्वीराज चौहान को उसने हरा दिया था। अब उसमें एक स्टोरी आता है, कल भी आप लोग को बता दिए थे, हम आज भी आप लोग को वो स्टोरी बता देते हैं। सब बोला जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और एक उसके आंख से उसको ब्लाइंड कर दिया, उसका और उसको एक पिंजरा में बंद करके गोर ले गया अपने साथ। और उसके बाद जो अफगानिस्तान में गोर ले गया, और चंद बरदाई जो पृथ्वीराज रासो लिखा था, चंद बरदाई वाज द फ्रेंड ऑफ पृथ्वीराज चौहान आल्सो, तो वहां पर भीड़ में ले गया और वहां पे ऐसा बोला गया कि पृथ्वीराज चौहान को कोई बोलता था उस पे वो बांध चला करके उसको मार देता था। तो मोहम्मद गोरी बोला कि ठीक है, तुमको आता है बांध चलाने, तो बांध चला कर दिखाओ। तो भीड़ में ही से चंद बरदाई उसको बोला कि 4 बांस 84 गज अंगुल अष्ट प्रमाण है, तो मत चुको चौहान है। तो बोला कि इतने दूरी पर बैठा हुआ है, सुल्तान बैठा हुआ है और तुम उसको मार दो। तो ऐसा बोला जाता है कि जब पृथ्वीराज चौहान को बोला कि जैसे ही वो बोला कि मारो, तो बस पृथ्वीराज चौहान समझ गया कि सुल्तान किधर है, और वो बांध चलाया और उसे महमूद गोरी की मृत्यु हो गई। और बाद में पृथ्वीराज चौहान और चंद बरदाई दोनों ने एक दूसरे को तलवार से काट करके अपनी जान को कहीं दे दिया। अब आप लोग सोच रहे हैं कि मैम को इतना स्टोरी कहाँ से पता है? तो हम पढ़ते थे, हम आप लोग की तरह छोटे थे तो हम लोग पढ़ते थे, अमर चित्र कथा पढ़ते थे, स्टोरीज पढ़ते थे, तो उसमें सब कुछ लिखा हुआ रहता था। और अमर चित्र कथा तो आप लोग भी पढ़ते हैं स्कूल लाइब्रेरी से लेकर, अभी नहीं मिलता होगा क्योंकि सब लोग लॉकडाउन की वजह से अपने घर में हैं। फिर जब लॉकडाउन टूटेगा, जब आप आइएगा स्कूल में, तो स्कूल लाइब्रेरी से बुक लेकर के और आप लोग पढ़िएगा, तो यू विल गेट द अदर इंफॉर्मेशन। और इससे क्या होता है कि हमारे इतिहास में क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे लोग थे, why they are famous, what mistake they have done, which we should not done to keep our country
हैप्पी एंड प्रोस्पेरस, अपने कंट्री को हैप्पी और प्रोस्पेरस रखने के लिए हम लोग को सबसे पहले जो हमारे पीछे के लोगों ने जो मिस्टेक किया वो हम लोगों को नहीं करना चाहिए। हिस्ट्री में हम लोग यही देखते हैं कि इस मिस्टेक से क्या लॉस हुआ कंट्री को, इसलिए हिस्ट्री को पढ़ना जरूरी होता है और इसको अच्छे से थोड़ा आप लोग को भी पढ़ना चाहिए। डोंट अवॉइड हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री से ही जो है आगे क्या होगा और कैसे लोग होंगे ये पता चलता है। जैसे फैमिली में भी फैमिली का हिस्ट्री होता है, लोग बोलता है कि इसके फैमिली का हिस्ट्री है, वो चाहे बीमारी का हो, पढ़ने का हो, गुड हैबिट का हो, बैड हैबिट का हो, तो ऐसा लोग कहते हैं कि उसके यहाँ के लोग ऐसे हैं इसीलिए बच्चा भी ऐसा है। तो इसी तरह कंट्री अगर खराब हो जाता है तो हम लोग ऑल कंट्रीमैन, आप लोग का भी नाम लगेगा कि तुम्हारा कंट्री अच्छा नहीं है। अब इसलिए लव योर कंट्री फर्स्ट, लव योर सेल्फ, लव योर नेशन एंड बी ऑनेस्ट, ये चीज जो है आप लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए। अब फिर से एक देखिए, द क्रेडिट ऑफ फाउंडिंग द ऑफ मुस्लिम एम्पायर इन इंडिया गोज टू महमूद गुरी। He occupied Peshawar, Lahore and Sindh. He was defeated in the first battle of Tarai by पृथ्वीराज चौहान। उसको तराई के फर्स्ट बैटल में पृथ्वीराज चौहान ने हराया था, but was victorious in the second battle of Tarai and took over Delhi and Ajmer। सेकेंड बैटल ऑफ तराई में जीत गया और दिल्ली और अजमेर को अपने हाथ में ले लिया। His dream of establishing an Islamic empire would have been incomplete without conquering कन्नौज। देखिए कन्नौज का जो है आपका, इसके पहले भी ट्रिपाटाइट स्ट्रगल में भी हम लोगों ने पढ़ा था, हर्षवर्धन जो था वो कन्नौज का राजा था और कन्नौज जो है द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। Kannauj was considered a symbol of power in North India. Hence, all the three kingdoms, the Rajputas, the Palas, and the Pratiharas, were constantly engaged in a struggle to possess Kannauj. Their struggle for supremacy was known as the tripartite struggle. Each of them succeeded in occupying Kannauj in turns, as they were almost at par in military strength. जब वो लोग बारी बारी से कन्नौज को जीतते जा, कभी प्रतिहार जीतते थे, कभी पल्लवा जीतते थे और कभी राजपूताज भी जीतते थे। बट द कंटिन्यूअस बैटल्स वीकेंड देम, लेकिन आपस में जब वो लोग कन्नौज के लिए बार बार लड़ते थे तो क्या हुआ, वो लोग कमजोर हो गए एंड फाइनली लेड टू द डिक्लाइन ऑफ ऑल द ग्रेट पावर, और ये लोग तीनों खत्म हो गए। देयर एम्पायर डिसइंटीग्रेटेड इनटू मेनी स्मॉल किंगडम्स। अब उसी कन्नौज को जब तक जो है जीत नहीं लेता था मोहम्मद गोरी, तब तक वो पूरे इंडिया का राजा नहीं बन सकता था, क्योंकि बिकॉज द कन्नौज वाज द मेन सेंटर ऑफ पावर। कन्नौज जो है सबसे बड़ा पावर सेंटर ये था, सेंटर था, इसीलिए कन्नौज को जीतना उसके लिए जरूरी था। दैट्स व्हाई ही डिसाइडेड टू कॉन्कर कन्नौज। तब अब कहता है द ड्रीम ऑफ एस्टेब्लिशिंग एन इस्लामिक एम्पायर वुड हैव बीन इनकम्प्लीट विदाउट कॉन्करिंग कन्नौज। कन्नौज को जीते बिना वो नहीं कोई काम कर सकता था। तो दैट्स व्हाई अब क्या किया, a fierce battle took place between the Muslims and the Rajputs। अब जब कन्नौज की तरफ बढ़ा तब अब क्या हुआ कि एक बहुत जबरदस्त लड़ाई हुई मुस्लिम और राजपूतों के बीच में। अब उसके बाद अब क्या होता है, पावर ऑफ द मुस्लिम एंड राजपूत, द पावर ऑफ राजपूत वाज क्रश्ड। मतलब अब उस क्रश का मतलब उनको हारना पड़ा, राजपूत को क्या हुआ इसमें हारना पड़ा। और जब ये हार गए तो उसके बाद फिर क्या होता है, व्हाट इज हैपनिंग, अब हारने के बाद इनका अब कहता है कि अब क्या होता है, किंग जयचंद was defeated and मोहम्मद गोरी occupied कन्नौज। अब देखिए इसको हराने के लिए किस पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए जयचंद ने जो था उसने मोहम्मद गोरी की मदद की थी। जब तो गोरी ने उसको कहा था, द गोरी हैड प्रॉमिस्ड दैट आई विल मेक यू द किंग ऑफ कन्नौज after the defeat of the पृथ्वीराज चौहान एंड ही हैज डन इट आल्सो। बट जो लोग भी धोखेबाज होते हैं, जो अपने कंट्री को धोखा देते हैं, तो सामने वाला भी उस पर भरोसा नहीं करता है। तो मोहम्मद गोरी जो है बाहर का था, बट ही वाज नोइंग दैट जैतन इज नॉट फेथफुल पर्सन बिकॉज ही द पर्सन हु हैज कहेगा डिच्ड हिज ओन कंट्री। डिच मतलब धोखा देना, जिसने अपने ओन कंट्री को भी धोखा दिया। तो जब जो आदमी अपने देश को धोखा दे सकता है, अपने कंट्रीमैन को धोखा दे सकता है, तो बाहर के लोग भी उस पर भरोसा
नहीं करते हैं। तो अब जयचंद लेकिन जब देखा कि मोहम्मद गोरी जो है कन्नौज को, मेरे राज को जीतना चाहता है, तो ही fought fearlessly but defeated. King Jayachand was defeated and Mahmud Gori occupied कन्नौज एंड बनारस। अब कन्नौज और बनारस को जीत लिया। ऑक्यूपाइड मतलब उस पर अधिकार कर लिया। महमूद गोरी डिड नॉट हैव ए चाइल्ड ऑफ हिज ओन। अब कहता है कि महमूद गोरी को अपना कोई बच्चा नहीं था। तो अब पहले जैसे हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? हेरिडिटी का मतलब यही होता है कि जब किंग का अपना कोई बच्चा रहता है वो उसके बाद राजा बन जाता है, बट महमूद गोरी का अपना कोई बच्चा नहीं था। तो इसने क्या किया, इंडिया का जो टेरिटरी था, ही पुट हिज टेरिटरी अंडर द चार्ज ऑफ हिज ट्रस्टेड स्लेव। अब उसका एक स्लेव मतलब दास था, गुलाम। ये लोग जाते थे तो लोगों को जो बंदी बनाते थे तो उनके अपने अंडर में रख लेते थे, वो लोग गुलाम कहलाते थे। और विदाउट पेइंग एनी मनी ये लोग पूरी जिंदगी भर उनका सेवा करते थे, और उसके बाद अगर उनके बच्चे होते थे तो वो बच्चे भी गुलाम ही कहलाते थे। तो महमूद गोरी का एक गुलाम था, बहुत उसको, जिसको ट्रस्टेड मतलब विश्वसनीय था, विश्वास करता था, और उसको जो है मतलब सेना में जनरल भी था। अब उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसी को इंडिया का राज दे करके ये वो वापस चला गया। The disunity among Indian rulers and the caste system were the main cause of the success of Gori and defeat of the Indian rulers. देखिए ये हम लोग ऑलरेडी आप लोग को बता चुके हैं, और फिर से थोड़ा ध्यान दीजिए। अब गोरी और या गजनी या गोरी जो भी यहाँ पर आए और वो लोग यहाँ पे रह गए या हम लोग हार गए, तो हम लोग क्यों हारे? वाई वी हैव डिफीटेड। तो कहता है क्यों हारे? तो द डिसयूनिटी अमॉन्ग इंडियन रूलर्स and the caste system were the main cause of the success of Gori and the defeat of Indian ruler. मतलब जो हम लोग आपस में लड़ते रहते थे, डिसयूनिटी मतलब आपस में लड़ने की आदत, और कास्ट सिस्टम ये जो है हम लोग का मेन कॉज था। मुस्लिम्स में कास्ट सिस्टम नहीं था, और हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। और वैश्य और शूद्र को लोग जो है बहुत ज्यादा इंफीरियरिटी से कॉम्प्लेक्स से थे, तो दे वे आर नॉट अलाउड to merge with the other upper classes. That's why they were dissatisfied with their condition and they helped the Muslims in that. That was the main cause. The common people were dissatisfied and they had no contact with the ruler. और राजा लोग ऐसे थे कि अब लोगों से मिलना जुलना नहीं करते थे। उनको अपना लगता था कि आई एम द किंग, आई एम ऑल पावरफुल, आई कैन डू वट एवर आई वांट। तो इससे क्या होता था, कॉमन मैन को क्या प्रॉब्लम है इस पे उनका कोई ध्यान नहीं रहता था। वे लोग क्यों आपस में ही लड़ते रहते थे, कॉन्फ्लिक्ट उनमें कंटिन्यूअस वार होता रहता था। तो सम राजपूत रूलर्स हेल्प द तुर्क्स अगेंस्ट देयर ओन कंट्री। फिर देखिए जैसे जिसमें एक जयपत जयचंद भी था, उसने अपने देश के खिलाफ ही तुर्क की मदद की थी। क्यों क्या था? क्योंकि उसको पृथ्वीराज चौहान से दुश्मनी थी, उसकी बेटी से उसने शादी कर लिया था, इसीलिए। तो अगेंस्ट मोर ओवर द फ्यूडल सिस्टम where the landowners were very powerful weakened the power of the king। अब फिर फ्यूडल सिस्टम भी था जिसमें कि जमींदारों को बहुत पावर हो गया। तो इन लोगों ने क्या किया, राजा को पैसा देना छोड़ दिए और अपने आप को अलग कर लिए। मतलब दे हैव एस्टेब्लिश्ड देयर ओन किंगडम, ओन estate, and all these small estates were fighting together, and this has weakened the unity of the country. The Gori's army was well equipped and his campaigns were properly planned। अब गोरी जब आता था तो उसकी सेना के पास जो भी मतलब आर्म्स था वो पूरा था और पूरा प्लानिंग करके लड़ने आता था। लेकिन इंडियन रूलर्स जो थे वो लोग कोई प्लानिंग नहीं करते थे। जब उनको पता चलता था कि आ रहा है तब वो लोग आपस में, क्योंकि वो लोग आपस में ही लड़ते रहते थे, इसलिए उनका कोई प्लानिंग बाहरी अटैक को रोकने के लिए नहीं होता था और ओल्ड तरीके से लड़ते थे। तो इससे क्या होता था, द मुस्लिम आर्मीज मूव स्विफ्टली ऑन देयर हॉर्सेस एज कंपेयर टू द आर्मीज ऑफ द इंडियन रूलर्स। आप कहता था अब वो लोग जो घोड़ा पे आते थे और आराम से आकर के, और घोड़ा वैसे कम जगह लेता था और लड़ाई, लेकिन उस समय इंडियन रूलर्स क्या करते थे, हाथी से लड़ने के लिए चलते थे। तो अब उससे क्या होता था कि हाथी जब गुस्सा हो जाता था तो अपने ही सैनिकों को मार देता था, और फिर मतलब जगह भी बहुत लेता था। इस मतलब जगह किस तरह का, जमीन पे बहुत जगह लेता था, मुड़ने में जगह लेता था। इसलिए जो है इन लोगों का घोड़ा पे ये लोग जो चलते थे तो खुद अपना घोड़ा चलाता भी था और लड़ता भी था, और यहाँ पे ज्यादा आदमी मरते थे और लड़ाई अच्छी तरह से नहीं कर पाते थे। The elephants were not of much help during the war, as many times
they turned their wrath on their own forces. अब कहता था एलिफेंट लोग ऐसे थे कि जब वो लोग गुस्सा हो जाते थे तो अपने सेना को ही अपने पैर के नीचे कुचल करके मार देते थे। मतलब उनको लड़ाई में किस तरह से, मतलब कभी कभी लड़ने के लिए जो एलिफेंट को लेके ये लोग जाते थे तो वो लोग जो है बहुत सपोर्ट नहीं करते थे, उल्टा में जब हाथी गुस्से में आ जाता था तो अपने सेना के लोगों को ही मार देता था। दिस वाज द मतलब दीज आर द मेन पॉइंट्स ऑफ द डिफीट ऑफ द इंडियन रूलर्स। अब इंडियन रूलर्स क्यों हार गए, दीज आर द मेन पॉइंट्स। Again, the disunity among Indian rulers and the caste system were the main cause of the success of Gori and the defeat of the Indian rulers. The common people were dissatisfied as they had no contact with the rulers. Some rulers, Rajputs rulers, helped the Turks against their own country. Moreover, the feudal system, where the landowners were very powerful, weakened the power of the kings. Gori's army was well equipped and his campaigns were properly planned. Thus, the Muslim armies moved swiftly on their horses as compared to the armies of the Indian rulers. They used old method of war, equipment, and elephant. The elephant were not of much help during the war, as many a time they turned their wrath on their own forces. Wrath मतलब गुस्सा। उसके बाद do you know? Except for conquering Gujarat, गोरी was successful in every invasion. अब कहता है कि गुजरात को पूरा गोरी जीत नहीं पाया, जितना जगह अटैक किया सब जगह जीता, लेकिन गुजरात में नहीं जीत पाया। क्यों नहीं जीत पाया? किंग भीमदेव gave him such a crushing defeat that Gori could not dream of peeping into Gujarat again. गुजरात के जो राजा थे भीमदेव, उन्होंने उसको ऐसा हराया, इतनी बुरी तरह हराया कि उसको दोबारा फिर से हिम्मत नहीं हुई गुजरात में आकर जीतने के लिए। Now children, do you any problem? No ma'am. में आ गया? वो ना माइक मैम you know एक बार और समझा दीजिए ना। क्या बोल रहे हो? Do you know एक बार और समझा दीजिए लोगों? अच्छा ओके। मैम एसएसटी का पोर्शन क्या है? अभी तो इस बार एसएसटी का टेस्ट नहीं है इस वीक में। एसएसटी का पोर्शन क्या है? एक बार और समझा दीजिए ना। Do you know? Do you? ठीक है, all of you आप लोग थोड़ा शांत। Except for गुजरात को जीतने के अलावा गोरी जितना बार इंडिया में अटैक किया हर लड़ाई में जीता। Bhimdev gave him such a crushing defeat that Gori could not dream of peeping into Gujarat again. Bhimdev उसको इतना जबरदस्त हराया कि गोरी को दोबारा हिम्मत नहीं हुआ गुजरात पर अटैक। सीधा do you? कोई प्रॉब्लम? Anyone has? प्रॉब्लम है? बताइए, we will do the question answer session. 40 होगा।